have done in the previous lab? पिछली लैब में हमने क्या किया था मिस्टर प्रिंस? Analysis of forces on the gear. Analysis of the forces we have done, है ना? So in one lab we have designed the helical spring. In the second lab we have completed the force analysis. In this lab we will focus on the design of the gear. So our objective today is design of spur gear. What do you mean by gear? Anyone? Which transmit power from one point to the another point. It's called gear. Yes, sir. No. With the help of successive engagement. Sir, Yes. gear is a tooth wheel which can transmit power from one shaft to another shaft by successive engagement and disengagement Of teeth. Very good, है ना? Very good. So there are three modes of power transmission. One is chain drive, one is gear drive, one is belt and pulley drive. So successive engagement word is important, है ना, in the gear power transmission. So design of spur gear means what? We have to find the module of the gear. Module is very important. Module is the ratio of diameter and the number of the teeth, and it's divided. Once we know the module, we can find the diameter or the PCD of the gear. जैसे ही हमको मॉड्यूल मिल जाएगा, हमको क्या मिल सकता है? PCD मिल सकता है. PCD किस फॉर्मूले से मिल सकता है, जरा बताओ. PCD का फॉर्मूला वेरी सिंपल, Pi into m. Pi into m. मॉड्यूल हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ टीथ हमारे पास है, सो वी हैव द PCD of the gear, है ना? और इसके अलावा we can find the addendum. Addendum भी मॉड्यूल के प्रोपोर्शन में होते हैं, addendum भी मॉड्यूल के प्रोपोर्शन में होता है. We can find addendum, we can find addendum. Addendum और addendum का जो डिफरेंस होता है, D minus E. Addendum minus addendum is known as clearance. तो हम क्लियरेंस भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो मॉड्यूल सबसे गियर की डिजाइन का मतलब है मॉड्यूल निकालना. So once we have the module, we have all the dimension. We know the height of the teeth, we know the addendum, we know the addendum. है ना? addendum को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? height of the teeth मिल जाएगा. इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं दो टूथ बनाता हूं. So this is let AB, this is let CD. So what is AB? AB is known as tooth width. AB and CD both are tooth width. And what is BC? BC is the tooth space. BC is the tooth space, the space between the two teeth. So theoretically, AB and BC are equal. Theoretically, they are equal, but practically, AB must be slightly higher. AB must be slightly higher than BC, slightly more than BC. Practically. Why should it be slightly more? Because to avoid the jamming of the teeth during the power transmission. To avoid the jamming of the teeth during the power transmission. So this AB and BC and CD. So AB is given by 1.5708 N for the 20 degree pressure angle alpha equal to 20 degree profile. AB is 1.5708 M and BC theoretically देखने के लिए भी यही सेम फॉर्मूला 1.5708 तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, और जब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, वी कैन ड्रॉ द गियर. हम गियर की ड्राइंग बना सकते हैं, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड आउट कर सकते हैं. तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल ही एक ऐसा पैरामीटर है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज की एक्सपेरिमेंट में, आज के लैब में हमारा एम है टू फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द स्पर गियर्स, आइदर द पिनियन और द गियर. अच्छा बताओ, मॉड्यूल पिनियन का ज्यादा होता है या गियर का? एनीवन?
सेम होता है सर। सेम होता है, वेरी गुड। सेम होगा जब भी उनके बीच में मैचिंग हो सकती है। वेरी नाइस आंसर है ना। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे। प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। तो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं 17.7 पेज नंबर 668, पेज नंबर 668, प्रॉब्लम नंबर 17.7 given in video. You all are having the book of video Vandari, so you can connect the problem with this page number. So first I will return the given data. So I am reading the problem. It is required to design a pair of spur gear with 20-degree full depth and volume profile. Alpha is given 20 degrees. तीन तरह की प्रोफाइल होती है, 14.5 डिग्री, 20 डिग्री और 20 डिग्री स्टब टूथ. So profile is given 20 degree. Gear has to be designed on the basis of Lewis equation. So what is the Lewis equation? Lewis equation we have proved in the theory class that it is given by Sp equal to Mv sigma By. Lewis equation. Mv sigma By. M is module, B is the phase width, sigma B is the bending stress. Phase width module, and what is Y? Y is the Lewis factor, or it is known as form factor or teeth factor, whatever. Okay. Sp is known as the beam strength. Beam strength is the value of the tangential force. It is the maximum value of the tangential force. Pt max. Maximum value of the tangential force that the tooth can withstand without bending value. ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे इन द डिजाइन ऑफ द गियर में, क्योंकि यही मैक्सिमम लोड है जो कि हमारा गियर टूथ बियर कर सकता है. यदि गियर पर आने वाला लोड इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो इट फेल्योर ऑफ द डिजाइन. ठीक है, सो सेफ डिजाइन के लिए बीम स्ट्रेंथ मस्ट बी हायर देन द लोड कमिंग ऑन टू द गियर. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. The velocity factor is to be used to account for the dynamic load. Velocity factor, CV is the velocity factor. This CV depends on the velocity, or precisely I can say it is pitch line velocity. Pitch line velocity given by V. So V is basically pi d by 60. If this v equal to 5 meters per second, then velocity factor is given by 3 by 3 plus v. Okay? If it is more than 5 meters per second, then the formula is changed. It may be 6 by 6 plus v. All the formulas are given in the data book. So for velocity factor, we will use data book to find the formula for the velocity factor. Right? So in this question, we have to consider the velocity factor. And if gear is running at higher velocity, then the load coming on the gear increases. Load coming on the gear increases. It is a dynamic type of loading. So as per the static loading, the load increases. So that load is multiplied by the velocity factor. So we will use this factor. So CV is velocity factor. The pinion shaft is connected to a 10 kilowatt 1440 RPM motor. Pinion, this is a smaller gear. It is connected to a 10 kilowatt. It means the power is given 10 kilowatt. RPM of the pinion, that it is N1. So RPM of the pinion is given 1440. Correct? The starting torque of the motor is 150% of the rated torque. Torque. It is basically empty.
MT के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं 60 10 to the power 6 multiplied kilowatt divided by 10 to the power n. So this torque is basically the average torque. By this formula we get the average torque, or I can say it is the mean torque. But question is saying that the starting torque, MT starting, is 150% of the MT average. This is given in question. The starting torque is 150% of the average torque, means it is 1.5 times more. So from design point of view, हमें कौन सा टॉर्क यूज करना चाहिए? ये टॉर्क यूज करना चाहिए या ये वाला यूज करना चाहिए? From design point of view हमको मैक्सिमम वाला टॉर्क यूज करना चाहिए. So this torque is maximum, है ना? At this torque the load will be higher. Load is higher means the stress is higher. So for the safe design we will take care of this torque. Starting torque is greater. It is mentioned in the question. So our service factor is CS. It is given by starting torque divided by the average torque. Starting torque divided by mean torque or average torque. So it is 150 by 10, so it is 1.5. So basically in our question, the value of the service factor is given 1.5. ठीक है? इसके बाद the speed reduction is 4:1. The speed reduction, so speed of the pinion is N1. Speed of the gear is N2. This reduction is 4, and we know that N1 by N2 is given by Z2 by Z1, and Z2 by Z1 is known as gear ratio. So it is I. I is the gear ratio. So in our question, I equal to 4 given. ठीक है? तो अब तक के डाटा को मैं समराइज करता हूं. अल्फा is given 20, gear ratio is 4. ठीक है? वेलोसिटी फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, हमें काउंट करना है. सर्विस फैक्टर इज गिवन 1.5. पावर इज गिवन 10. आरपीएम ऑफ द पिनियन इज गिवन 1440. दिस इज द गिवन डाटा टिल नाउ. ठीक है? तो इतना डाटा हमको गिवन है. अल्फा 20, प्रेशराइजर, गियर रेशियो, सर्विस फैक्टर, पावर, आरपीएम. आगे देखते हैं. The pinion as well as the gear is made of plain carbon steel 40C8 SUT 600 Newton per mm square. So pinion and gear both are made of plain carbon steel 40C8 means carbon is 0.4%, manganese is 2.8%. The SUT of the material is given 600 Newton per mm square. So both are made of same material. It means pinion is weaker. Pinion is weaker. तो गियर डिजाइन में सबसे पहले हमको यही देखना होता है कि कौन वीकर है, पिनियन वीकर है या गियर वीकर है. ठीक है? अब जब दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हों, पिनियन भी गियर भी सेम मटेरियल, तो उस वक्त पिनियन ही ऑलवेज वीकर होता है ना? क्यों होता है ऑलवेज वीकर? बिकॉज़ द बीम स्ट्रेंथ एज पर द लुईस इक्वेशन इज गिवन बाय mb sigma b by m is module is same for pinion and gear. It is constant. Phase width is constant. Bending stress is also constant because they are made of same material. The material is same 40C8. So bending stress produced will be same. And y is the Lewis factor or it is the tooth factor. So tooth factor for pinion will be less than tooth factor for gear. ठीक है? Tooth factor depends on the number of the teeth, and number of the teeth on the pinion is always lesser. That's why the tooth factor for the pinion is lesser than the tooth factor of the gear.
So why for pinion is lesser? That's why the beam strength of the pinion is less as compared to gear. When the beam strength is less, it means pinion is weaker. So when both are made of same material, pinion is always weaker. But if both are made of different material, then sigma B means bending stress will be different for pinion, different for gear. So this product will decide the weaker. है ना? ये दोनों डिफरेंट मटेरियल के होंगे तो हमको प्रोडक्ट से पता करना पड़ेगा कि सिग्मा बी और वाई का प्रोडक्ट किसके लिए कम है. जिसके लिए कम होगा वो वीकर होगा. ठीक है, तो हमारे केस में कौन वीकर है? इन आवर केस पिनियन इज वीकर. तो ये हम यहां पे लिख देते हैं बिकॉज बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हेंस पिनियन इज वीकर. वीकर फाइंड कर लिया है ना एग्जाम्स में. यदि आपने वीकर फाइंड कर लिया मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो जरूर लिखिए इस लाइन को. बिकॉज बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. ये भी लिखिए बिकॉज बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल दैट्स व्हाई पिनियन इज वीकर. तो अब तक के डाटा में ये डाटा गिवन है. पिनियन वीकर है, एसओटी 600 है, पावर ये है, सो एंड सो. आगे देखते हैं क्या है. डिजाइन द गियर्स. डिजाइन द गियर्स मींस मॉड्यूल निकालना है. सो मॉड्यूल इज क्वेश्चन मार्क. स्पेसिफाई द डायमेंशंस. डायमेंशन निकालनी है मतलब डायमेंशन तो बहुत सारी होती हैं. फिक्स सर्किल डायमेंशन होती है, अडेंडम होता है, डिडेंडम होता है, क्लियरेंस होता है, टूथ विड्थ होती है, टूथ थिकनेस होती है, टूथ हाइट होती है. सो मेनी डायमेंशंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो होती है वो आपकी पीसीडी, अडेंडम, डिडेंडम. पीसीडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन. व्हाट इज द पीसीडी ऑफ द पिनियन? व्हाट इज द पीसीडी ऑफ द गियर? तो इन आवर केस वी हैव टू फाइंड D1, वी हैव टू फाइंड D2. सो मॉड्यूल भी निकालना है, D1 भी निकालना है, D2 भी निकालना है, अडेंडम भी निकाल सकते हैं, सारे डायमीटर निकाल सकते हैं, बट मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी. सो M, D1, D2 and suggest suitable surface hardness for the gears. Gears के लिए हार्डनेस क्या होगी उसको सजेस्ट करना है. So BHN, Brinell hardness number. We have to suggest कि हमको कौन सा PCD क्या है सर? Yes. PCD. हाँ, PCD means this D1 is PCD, pitch circle diameter. D2 is also pitch circle diameter, 1 for pinion, 1 for gear. 1 is for pinion. I am taking the suffix 1 for pinion, 2 for gear. Okay. So question is completed. मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. क्या क्या चीजें गिवन है ना. वेलोसिटी फैक्टर हमको अकाउंट में लेना है, अकाउंट में करना है. ये मटेरियल है, डाटा गिवन है, मॉड्यूल फाइंड करना है. चलिए शुरुआत करते हैं. नाउ आई एम मूविंग टू सॉल्यूशन. शॉर्ट में लिख देता हूं. SUT is given 600 Newton per mm square and question mark due. So given part is complete. Now solution. For the safe design of pinion. पिनियन वीकर है तो पिनियन को डिजाइन करेंगे ना. जब पिनियन डिजाइन हो जाएगा तो गियर तो ऑटोमेटिकली उस लोड को सस्टेन कर जाएगा. वो लोड तो सेम होता है ना दोनों पे आने वाला. अभी हमने फोर्स एनालिसिस में देखा था कि टेंजेंशियल फोर्स जितना पिनियन पे आता है उतना ही टेंजेंशियल फोर्स गियर पे आता है. और पिनियन वीकर है तो पिनियन के ही फेलियर होने के पहले चांसेस हैं. इसलिए हम पिनियन को डिजाइन करेंगे. गियर तो ऑलरेडी सेफ है. ठीक है. तो फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ पिनियन I will write the beam strength. The beam strength ST must be greater than the load coming on the gear. So P effective is the load coming on the gear. This is the actual load coming on the gear. And this actual load is given by
I am changing this greater than sign to equal to, so I am taking a factor of safety into P effective. So SP must be greater than P effective, and greater than sign changes into equal to by the taking a factor of safety. So SP is factor of safety Fs multiplied by P effective. In our question, factor of safety is also given, I think. एक बार check कर लेते हैं. Yes, the factor of safety can be taken as 1.5. So Fs is also given 1.5 in the question. Now, this P effective is given by tangential force Pt multiplied by the service factor divided by velocity. ठीक है, P effective के लिए हमारे पास फॉर्मूला है the tangential load coming on the gear and the service factor, है ना, service factor is given 1.5 in our case because the starting torque is more than average torque, 150 times 1.5 times greater than the average torque, and CV is the velocity factor. ठीक है, तो जरा बताओ हमारा गियर कितनी वेलोसिटी पे रोटेट हो रहा है? एनीवन, हमारा गियर कितनी वेलोसिटी पे रोटेट हो रहा है? हमारा गियर 1440 आरपीएम पे रोटेट हो रही है पिनियन, 1440 आरपीएम पे रोटेट हो रही है पिनियन, और हमारा गियर कितने आरपीएम पे रोटेट हो रहा है? बिकॉज द गियर रेशियो इज 4, तो हम कह सकते हैं N1 is 1440 divided by N2 equal to 4. So N2 is given by 1440 divided by 4. Solve करिएगा कितना आता है? बताइए कितना? 360. 360. तो देखो हमारा गियर रोटेट हो रहा है 360 आरपीएम पे, पिनियन रोटेट हो रही है 1440 आरपीएम पे. ठीक है, अब पिनियन की पिच लाइन वेलोसिटी क्या है बताओ? What is the pitch line velocity of the pinion? So pitch line velocity is given by pi d1 n1 by 60 for the pinion, and it is given by pi d2 n2 divided by 60 for the gear. Pitch line velocity is given by v1 is pi d1 n1 by 60, pi d2 n2 by 60. Very well known formula, v equal to pi d n by 60. तो जरा बता सकते हो किसकी पिच लाइन वेलोसिटी ज्यादा है, पिनियन की या गियर की? एनीवन? एनी आइडिया? पिनियन. किसकी? पिनियन. पिनियन की. देखिए पिच लाइन वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी, न पिनियन की ज्यादा होगी न गियर की ज्यादा होगी. दैट इज इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि सर दोनों सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं. हाँ, पिच लाइन वेलोसिटी बराबर होती है. देखो मैं बताता हूं आपको. मान लीजिए कि ये पिनियन है, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका गियर, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. दिस इज द कॉमन पॉइंट, दिस इज द पिच पॉइंट, P is the common point. This is the center, this is the radius of the pinion, this is the center, this is O1, this is O2, this is the radius of the, this is R1, this is R2. Radius of the pinion, radius of the gear, है ना? It is rotating at 1440 rpm, it is rotating at 360 rpm. तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी है, वो तो डिफरेंट है. एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, पिनियन कितने कर रहा है, गियर कितने कर रहा है, वो तो अलग अलग है. एक का 1440 है, एक का 360 है. बट जो कॉमन पॉइंट है उसकी यदि आप लीनियर वेलोसिटी की बात करोगे, v is the linear velocity. So linear velocity is given by pi d by 60, and this point is common to pinion, common to gear. ये पॉइंट तो दोनों पर है ना? यस सर. पिनियन पर भी है, गियर भी है, तो एक ही पॉइंट की एक टाइम पर दो वेलोसिटी हो नहीं सकती है. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक चीज, कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी से घूम रहा हो, दो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. इट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई v मस्ट बी इक्वल. So V1 and V2 are always equal. चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालें, चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, दोनों से आपको सेम आंसर मिलने वाला है. ठीक है?
सो पिच लाइन वेलोसिटी तो दोनों की बराबर होगी। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि पिच लाइन वेलोसिटी तो दोनों की इक्वल है। और जो वेलोसिटी फैक्टर होता है ना, जिसे मैं CV नाम दे रहा हूं, CV, वो वेलोसिटी फैक्टर इनके फॉर्मूले में क्या आता है, पिच लाइन वेलोसिटी आती है 3/3 + v। सो v इज द पिच लाइन वेलोसिटी। ठीक है, तो जब पिच लाइन वेलोसिटी दोनों की इक्वल है तो क्या हम पिच लाइन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मीटर्स पर सेकंड है? कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, डी नहीं है, d1 हमारे पास नहीं है। डायमीटर d1 को हम क्या लिख सकते हैं, n × z1। n1 हमारे पास है 1440 डिवाइडेड बाय 60। z1 हमारे पास है 1440, हमारे पास है पाई, मुझे पता है, m मालूम नहीं है, m तो मालूम नहीं है ना, डायमीटर मालूम नहीं है, टीथ मालूम है क्या क्वेश्चन में? टीथ भी मालूम नहीं है, टीथ भी नहीं, टीथ आर आल्सो नॉट गिवन, टीथ आर आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम आती है, पिच लाइन वेलोसिटी का यूज करना है, पिच लाइन वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई वी टेक सर्टेन assumptions in the design of the gear, we take certain assumptions। तो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे assumption पर, तो देखिएगा, इसे मैं रद्द कर रहा हूं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सॉल्यूशन तो फिर हो ही जाना है। अब देखिए, टीथ हमारे पास है नहीं, डायमीटर हमारे पास है नहीं, पिच लाइन वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, है ना, मॉड्यूल हमारे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास फिलहाल, और वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट में लेना है। वेलोसिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक assumptions लेते हैं, दो assumption लेते हैं। नंबर 1, कुछ तो स्टार्टिंग करने, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट वी डू, सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो टीथ है, पिनियन के टीथ, गियर के टीथ, ठीक है, तो पिनियन के टीथ को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 18 है। अब आप कहोगे 18 क्यों अज्यूम किया आपने, 20, 22, 25 तो नहीं, हाँ, लीस्ट नंबर ऑफ द टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। कभी थ्योरी क्लास में आया होगा, यस सर, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पिनियन पर कितने टीथ आवश्यक हैं, तो वो कम से कम 18 टीथ हैं। तो कम से कम कॉस्ट लेकर के हम सोच रहे हैं कि डिजाइन करते हैं, क्या पता 18 में हमारा कांटा फिट हो जाए, गियर की डिजाइन सक्सेसफुल हो जाए। सो वी आर टेकिंग स्टार्टिंग दैट पिनियन इज हैविंग 18 नंबर ऑफ टीथ। जब पिनियन पर 18 टीथ हैं तो गियर पर टीथ हो गए 72। पिनियन पे 72 कैसे हो गए, क्योंकि गियर रेशियो हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4। गियर रेशियो 4 दे रखा है, I = 4, I is given by Z2 by Z1। so if Z1 is 18, Z2 is 70। तो एक तो हमारा ये assumption हो गया। इस assumption में कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। Z1 तो पिनियन पे है ना, हाँ, तो पिनियन के टीथ हमने 18 मान लिए, हम पिनियन को जो डिजाइन कर रहे हैं, पिनियन पे ही तो टीथ कम से कम होते हैं। गियर के हो गए 72, गियर के 72, यस, Z2 फॉर गियर, 1 is the suffix for pinion, 2 is the suffix for gear, बिल्कुल सही। तो Z1 18 हो गया, Z2 72 हो गया, ये एक हमारा assumption है, और ये assumption हमने 20 डिग्री प्रोफाइल के कारण लिया है। यदि हमारे क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 20 ना होकर के 14.5 होती, किसी और क्वेश्चन जब आप आगे करेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 20 डिग्री, मे बी 14.5 डिग्री और एनी अदर, तो यदि 14.5 डिग्री है तो फिर आप Z1 को कितना अज्यूम करते हैं, एनीवन? इन दैट केस Z1 की वैल्यू आप अज्यूम करते 32, ठीक है? यस सर। मिनिमम नंबर ऑफ द टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस फॉर 14.5 डिग्री प्रोफाइल इज 32। उस केस में 32 करते, जब ये 32 होता तो फिर Z2 कितना हो जाता, 32 × 4, 128, 128 हो जाता हमारा टीथ, ठीक है? तो अब इसको तो छोड़ देते हैं, हमको तो 18 वेक्टर से काम करना है क्योंकि हमारी प्रोफाइल 20 डिग्री की है। तो दिस इज हमारी फर्स्ट assumption। इस assumption को लेके हम ट्राई करेंगे, यदि डिजाइन सक्सेसफुल है वेल एंड गुड, यदि डिजाइन सक्सेसफुल नहीं हुई
है ना, दोनों केस हो सकते हैं, मे बी सक्सेसफुल मे बी नॉट सक्सेसफुल। तो यदि सक्सेसफुल नहीं हुई देन वी विल इंक्रीज दिस 80 to 20, है ना, 19 भी कर सकते हैं, 18 19 20 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसको 20 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, इसको 22 करेंगे तो 88 हो जाएगा, एंड सो ऑन। फिर देन अगेन वी विल डू द सेम थिंग एंड दिस साइकिल्स गोज ऑन टिल डिजाइन इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो चलिए हमने 18 डाल दिया। दिस इज माय फर्स्ट assumption, दिस इज assumption। अब जैसे ही assumption एक हो गया, दूसरा assumption हम ये ले रहे हैं कि गियर की जो वेलोसिटी है, गियर की जो वेलोसिटी है उसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं। जनरली जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में शुरुआत में जो अज्यूम करते हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी को जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकंड। क्योंकि डाटा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ तो assumption लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग assumption that our pinion is rotating, gear is rotating at pitch line velocity of 5 meters per second। ठीक है, अब जैसे ही हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, मतलब वेलोसिटी assumption कर लिया, तो हम वेलोसिटी फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं 3/3 plus d। This formula is given in data book, so it is 3/3 plus 5, so it is 3/8। 3/8 की वैल्यू बताओ कितनी है? 8 3 24। एकदम 375 आ रहा है, क्या देखो चेक करो। 3/8 की वैल्यू 0.375 होती है, कुछ और है? यस नो बोल दो। Yes sir, 3.75. नहीं 0.37 है ना, 0.3। Yes sir, yes sir. ओके, तो ये हमने दो assumption ले लिए। ठीक है, अब हमने जैसे ही assumption ले लिए तो अब हम मेन अपने इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, S B greater than P effective, S बराबर FS into P effective। बस यहीं से हमारी शुरुआत होगी, सारा काम यहाँ पे कंसंट्रेट होना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं जरा ऊपर की चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। S B बराबर FS into P effective, S B बराबर FS into P effective। This line is visible ना? Yes। S B का फॉर्मूला लगा दिया, M B सिग्मा B by फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दे रखा है, इसे लिख लो या अगली लाइन में लिख लो। P इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है? PTCS by C, PTCS by C। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम काम शुरू करेंगे। तो चलिए, मॉड्यूल तो मालूम नहीं है, m फेस विड्थ मालूम नहीं है, फेस विड्थ को 10m अज्यूम कर लेते हैं, है ना, जनरल वैल्यू होती है 8m से लेके 12m के बीच में, है ना। फेस विड्थ की जो इंपेरिकल वैल्यूज रखी जाती है वो 8m से 8 टाइम्स मॉड्यूल से 12 टाइम्स मॉड्यूल, तो उसको एवरेज ले लेते हैं 10m। तो b को 10m लिख दिया क्योंकि b के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, दिया होता तो फिर उसी को लिखते हैं ना। फेस विड्थ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एट द 10m। अच्छा, अब आते हैं सिग्मा b। सिग्मा b, अब सिग्मा b कैसे लिखा है? बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए किसी साइंटिस्ट ने बताया है कि SUT/3, कई सारे assumption है गियर के अंदर, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, बेसिकली एंडोरेंस स्ट्रेंथ या जो भी है, तो उसके लिए हम कई सारे, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन में K, KB, KC, KD करते थे, है ना, निकालने के लिए। एंडोरेंस स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करते थे? KB, KC, K सब कुछ करते थे। वेलोसिटी फैक्टर, इंपैक्ट लोडिंग इज देयर, तो K, KB, KC का उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल स्ट्रेंथ निकलती है ना। सिग्मा बी की एक्चुअल वैल्यू निकलती है, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन उस एक्चुअल वैल्यू को निकालना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारे फैक्टर्स की वैल्यू गियर डिजाइन में मिल जाना पॉसिबल नहीं है। तो गियर डिजाइन में 3-4 साइंटिस्ट ही मेन है। एक तो लुइस, जिसने लुइस इक्वेशन दिया है, ही इज द मेन साइंटिस्ट, ठीक है। इसके अलावा 2-3 साइंटिस्ट और हैं। एक हर्ड साइंटिस्ट है ना, जिसने कॉन्टैक्ट स्ट्रेस पे काम किया था। गियर टीथ आर इन कॉन्टैक्ट विद पिनियन टीथ, देयर इज ए कॉन्टैक्ट स्ट्रेस।
तो उस पर काम किया था, है ना। एक और साइंटिस्ट हुए, है ना, उन्होंने वियर स्ट्रेंथ पे काम किया था, गियर की वियर स्ट्रेंथ पे, है ना। अभी हम वियर को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो भी वैल्यू आती है के, केवी, केसी, केडी वगैरह से, वो लगभग इसी रेंज में आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि सिग्मा बी को आप SUT/3 लेके आगे बढ़ सकते हैं। You can go ahead 1/3 of the SUT. So what is SUT given in our question? 600 megapascal, है ना। तो 600 megapascal, so that is 600/3, so it is 200. So I will put 200 in place of sigma b. And now what is y? Y is the tooth factor. Y is the tooth factor. अब टूथ फैक्टर हम किसके लिए निकालेंगे? पिनियन के लिए या गियर के लिए? बताओ। हम पिनियन को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम टूथ फैक्टर पिनियन के लिए कैलकुलेट करेंगे। और टूथ फैक्टर नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। और पिनियन पर नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 18 हमने अज्यूम किया। टूथ फैक्टर कितना है पिनियन के लिए? 80। तो हम डाटा बुक में जाएंगे, 18 टूथ के लिए वहां पे टेबल बनी हुई है ना, 18, 20, 22, 24 ऐसे नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं। जेड, एक तो जेड का कॉलम है और एक तरफ वाई का कॉलम। तो 18 के आगे कितना लिखा हुआ है बस वो बता दो डाटा बुक देख करके। सब लोग अपनी अपनी डाटा बुक खोलो, आपके पास होंगी डाटा बुक, निकाल लीजिए अपनी रैक में से और उस डाटा बुक में देख के बताइए कि 18 टीथ के लिए जेड की वैल्यू क्या है। सर लेके नहीं आए डाटा बुक? लेके नहीं आए, हॉस्टल में रह गई है। यस सर। चलो कोई नहीं, मैं अपनी डाटा बुक में देख के आपको बता रहा हूँ, है ना, आप उसको चेक कर लेना। तो इट इज गिवन 0.308। तो 18 टीथ के लिए y की वैल्यू 0.308 है। तो y की जगह पर मैं लिख रहा हूं 0.308। एक बार फिर से, m b की वैल्यू 10 है, सिग्मा b SUT/3, तो ये 200 हो गया। y हमने डाटा बुक से देख लिया, सो इट इज 0.308। सो दिस पार्ट इज करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं 1.5। अब क्या चाहिए आपको? PT। PT इज द टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स एनालिसिस आप कर चुके हैं। फोर्स एनालिसिस में आपने PT ही निकाला था। कैसे निकाला था PT? क्या फॉर्मूला यूज किया बताइए? आपने यूज किया था ट्वाइस NT डिवाइडेड बाय D। आप काम कर रहे हैं पिनियन के लिए, तो डायमीटर कौन सा लेंगे? D1, है ना। बस अब आपको चाहिए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? 60 10 to the power 6। टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? 60 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय किलोवाट डिवाइडेड बाय D1 2 by n। टॉर्क का फॉर्मूला रख दिया आपने, ठीक है। सो दिस इज गिवन बाय 2 into 60 10 to the power 6 किलोवाट। हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? गिवन डाटा से देखो 10। इट इज गिवन 10। डायमीटर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बट D1 की वैल्यू होती है mZ1। सो आई एम राइटिंग m तो अननोन है, Z1 हमने 18 अज्यूम कर लिया है, सो इट इज m times 18। D1 can be taken as m times 18। 2 pi n, so it's 2 pi n मतलब n1 मतलब 1400। फिर इसको सॉल्व करके नीचे में m आएगा, ऊपर क्या आएगा ये बताइए। सॉल्व करें। हाँ अरे अच्छा ठीक ठीक। तो जरा बताइए इसका सॉल्यूशन बता दीजिए कितना आ रहा है। बस 3-4 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, मॉड्यूल निकलने वाला है। वी आर एट द लास्ट पॉइंट एक तरह से मान लीजिए। तो ये वैल्यू बता दो न्यूमरेटर कितना आ रहा है? सर 7372.02। 7372.02 डिवाइडेड बाय n।
सर देख लीजिए एक बार। अच्छा देख लूं, नहीं सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। 7372 ठीक है। ये आपने तो गुणा कर दिया ना, दिस गुणा बटे इतना, यस सर। 72.025 है, ये हमारा पीटी हो गया, ठीक है। तो पीटी की जगह मैं लिख रहा हूं 7372.02 डिवाइडेड बाय n। उसके बाद सर्विस फैक्टर हमारे क्वेश्चन में कितना है 1.5। वेलोसिटी फैक्टर हमारे क्वेश्चन में कितना है 0 पॉइंट अभी निकाला है हमने 3/8 0.375 अभी कैलकुलेट किया था, सो इट इज 0.375। एक बार फिर से देखें 1.5 पीटी हमने फॉर्मूले से निकाल दिया मॉड्यूल के फॉर्म में, है ना, मॉड्यूल के फॉर्म में सर्विस फैक्टर 1.5 दे रखा है। सीवी हमने 3/3 + v के फॉर्मूले से 0.375 कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आप इस पूरी इक्वेशन में देखो अननोन क्या है, व्हाट इज अननोन मॉड्यूल। पूरी इक्वेशन मॉड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है एंड ओनली m इज द अननोन, ठीक है। m * m स्क्वायर और एक ये वाला m क्यूब। यस सर। तो ये हो जाएगा m क्यूब। तो m क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉल्व करो, this into this into this into this डिवाइड बाय this कितना आता है, बता, सॉल्व करिए। सर ये सीबी की वैल्यू अपॉन में नहीं होगी क्या? अपॉन में होगी, गुड, नीचे ही तो है वो, अपॉन में लगे नीचे ही है ना, PTCL/C नीचे हो, गुड ऑब्जर्वेशन। या शाहरुख खान क्लास में है, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी सर। कैलकुलेटर है आपके पास, जरा बताइए इसका फाइनल क्या आंसर आ रहा है m क्यूब का। यस सर। ये मैं करूं अपने कैलकुलेटर में, चलिए एक बार मैं भी करता हूं। 7372.02 into 1.5 into 1.5 again divided by 0.375 equal to divided by 2000 equal to divided by 0.308 equal to 71.80 आ रहा है, 71.805। चेक करिए, यही है आपका? यस सर यही है। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट तो आपको m मिल जाएगा। सो पावर 1/3 4.1 4.156 mm. So this is the module. It is rounded off to 5 mm. तो मॉड्यूल जनरली हम लोग डेसिमल में नहीं रखते हैं, है ना। डाटा बुक में मॉड्यूल की एक टेबल है, तो उस टेबल से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये मॉड्यूल निकला, लेकिन ये सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल है, सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल फ्रॉम डेली बुक, डाटा बुक, डिजाइन डाटा बुक। डिजाइन डाटा बुक में आप देखेंगे वहां पे 4 होगा, 4 के बाद सीधे 5 होगा, है ना, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे करके कुछ एक सीक्वेंस दे रखा होता है मॉड्यूल का। डाटा बुक में देख लीजिएगा।
तो वहां से हमने मॉड्यूल का सिलेक्शन कर दिया, है ना। मान लो हमारा आंसर 6.1 आया होता, है ना, मान लीजिए मॉड्यूल का आंसर 4.1 की जगह 6.1 आया होता, तो हम उसका सिलेक्शन करते 6 से आगे वाला यानी कि 8, 7 में नहीं जाते हैं, है ना। वी हैव टू फाइनलाइज द मॉड्यूल फ्रॉम द डाटा बुक टेबल। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमारा मॉड्यूल कितना हो गया? 5 मॉड्यूल आ गया 5, इसका मतलब गियर डिजाइन हो गया एक तरह से, ठीक है। अब बताओ गियर का सर्किट डायमीटर कितना हुआ? D1 MZ1, M की वैल्यू 5, Z1 18 तक में 90 mm की तो गियर बनेगी। D2 MZ2, M की वैल्यू 5, Z2 की वैल्यू 72, कितना हो गया? 360 mm, 360 mm की गियर बनेगी, ठीक है। D1 हो गया, D2 हो गया। अब आप बताओ कि आपने तो अजम्पशन ले लिए, आपने तो अजम्पशन ले लिए थे ना, तो आपकी डिजाइन सेफ है नहीं है ये कैसे कंफर्म होगा? बिकॉज योर डिजाइन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये इतने डायमीटर का पिनियन, इतने डायमीटर का गियर सक्सेसफुली, डिजाइन इज सक्सेसफुल, डिजाइन इज सेटिस्फैक्टरी, है ना। सर वो रेशियो देखेंगे जो शायद दे रखा है। कौन सा रेशियो? सर N1/N2 वाला इज इक्वल टू 4। हाँ वो तो रेशियो दे रखा है, तो उस रेशियो से क्या होगा? रेशियो तो 4 ही आ रहा है ना, 90 चौके 360, रेशियो तो आज 4 ही आ रहा है, D2/D1। तो सर रेशियो तो फिट आ रहा है, रेशियो तो फिट आएगा नहीं। ना, रेशियो से कोई मतलब नहीं है, रेशियो तो फिट आएगा। ओके। हमें तो ये चेक करना है कि हमने 18 टीथ मीडियन पे मान लिए, ठीक है, 72 टीथ उस पे मान लिए, है ना। उसका ऐसा करने से ये मॉड्यूल आया, मॉड्यूल को भी फिर हमने राउंडिंग कर दी, है ना, मॉड्यूल की भी फिर हमने राउंडिंग कर दी। तो राउंडिंग करने से फाइनली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का मिलना चाहिए था, क्या वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कहीं कम तो नहीं हो गया? यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 की जगह थोड़ा बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम, 1.5 की जगह 1.7 हो जाए, 1.8 हो जाए, नो प्रॉब्लम, डिजाइन इज सेफ। बट यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे चला गया, इट मींस डिजाइन इज नॉट सेफ, इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एज पर द गिवन डायमेंशन। तो लास्ट स्टेप इसमें होता है चेक फॉर डिजाइन, चेक द सेफ्टी ऑफ डिजाइन, है ना। तो मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, क्लास एंड करते हैं, है ना। चेक कैसे करेंगे आप लोग स्वयं चेक करना, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कैसे चेक करें। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है? SB बाई P फैक्टर, ये होता है ना, SB बाई P फैक्टर। SB की वैल्यू NB सिग्मा B बाई M, 5 mm रखोगे आप, 4.16 नहीं रखोगे, कितना रखोगे? 5 फाइनल वैल्यू। M की जगह 5 रखना, B की जगह 50 रखना, 10 M, सिग्मा B की जगह 200 रखना, 600/3, Y की जगह जो भी आया था आपका रूट फैक्टर कितना आया था? 0.08। हाँ तो वही रख देना, Y की जगह जो भी आया था, तो ये आपकी ऊपर की न्यूमरेटर निकल जाएगी, ठीक है। अब नीचे का जो P फैक्टिव है उसमें क्या है? PT CS/CV, ठीक है। अब आप CV रख लेना, CS आपका 1.5 है, PT आपका कितना आया था? 7372.02/10, यही तो आया था PT आपका, है ना। तो M की जगह 5 रख करके आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद चेक करना कि वो वैल्यू 1.5 से कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। यदि ये वैल्यू 1.5 से ज्यादा आ रही है, डिजाइन सेफ है, यदि कम आ रही है तो डिजाइन अनसेफ है। यदि कम आएगी तो फिर हमको नंबर ऑफ द टीथ बढ़ाने पड़ेंगे, यदि सही आ रहा है मतलब ज्यादा आ रहा है तो हमारी डिजाइन सेफ है, हम यहीं पे एंड करते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो यू डू दिस चेक योरसेल्फ, है ना, थोड़ा सा बुक की भी हेल्प लेना, है ना, तो वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। यदि भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो दिस कंप्लीट्स all from my side for this lab. If you have any query, please ask. मैं जरा इसे क्लोज करता हूँ।
कोई क्वेरी तो नहीं, मतलब समझ में आ गया है क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, गेट में भी आएंगे और आपके एग्जाम में भी आएंगे, मॉड्यूल निकालने के क्वेश्चन आएंगे। गियर डिजाइन के क्वेश्चन का मतलब है आपको मॉड्यूल फाइंड करना है, उसमें ढेर सारे अजम्पशन हो सकते हैं। अजम्पशन लेने में आप बिल्कुल कतराइए मत, खुल के अजम्पशन लीजिए, है ना, लेकिन आपके अजम्पशन लॉजिकल होने चाहिए। जैसे 20 डिग्री प्रोफाइल है तो 18 का अजम्पशन लीजिए, 32 का नहीं, है ना। तो उसको लेके आगे बढ़िए और फिर डिजाइन को फाइनली चेक कर दीजिए। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कमिंग मोर देन द डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देन द डिजाइन इज सेफ। So, can I end the class? Yes, sir. Okay, thank you. Stay home, stay safe.